स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हम लोग है ना डिस्कशन कर रहे थे अबाउट Wheatstone's balancing condition Wheatstone's balancing condition स्टूडेंट्स सो हमें यहाँ पे टोटल 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल आउट ऑफ द 4 रेजिस्टर्स 3 हम जानते हैं, एक हमें कैलकुलेट करना होगा and the balancing condition looks like R1 over R2 is equals to R3 upon R4. R3 over R4. Perfect. So students, the condition that we have is R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. ये है हमारे लिए Wheatstone's balancing condition. So बेसिक सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं, पूरा हम ड्रॉ नहीं कर रहे स्टूडेंट. बेसिक 1 2 then 3 over here, one more is there, R4. So this is R1, this is R2, this is R3, this is R4. क्वाड्रिलेटरल को हम नाम देंगे क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D. दो अपोजिट वर्टाइसेस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास B एंड D, उसके अक्रॉस वी आर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर G एंड दूसरे जो दो अपोजिट वर्टाइसेस है स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टाइसेस A एंड C, उसके अक्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं. So the main current that is flowing through the circuit is I. That current I will split at junction A. So ऊपर वाले ब्रांच से करंट I1, नीचे वाले ब्रांच से करंट I2 फ्लो होने वाला है. Now I have a question to you students. Tell me, in case we want to use Wheatstone's balancing condition, how much current should be flowing through galvanometer students? 0 ampere. 0, yes. So Ig should be equals to 0. Current flowing through galvanometer should be equals to 0. So इसे हम कह सकते हैं that galvanometer will show zero deflection. Yes, null that is null deflection. Perfect बच्चों. null deflection यानी zero deflection. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पॉइंट बी एंड पॉइंट डी का नेम याद है? कुछ नाम दिया था हमने इसको. Equipotential points. Equipotential point. Yes, very good students. Both of you are 100% correct. Point B and point D are at the same potential. So point B and point D are called as equipotential points. Point B, point D are called as equipotential points. Yes. So current flowing through galvanometer is 0. The next question for you is, students, अगर galvanometer से current 0 है, हमने डायग्राम में दिखाया it is 0. So tell me one thing, जो resistance R2 है, उससे कितना करंट फ्लो? I1. I1 मतलब सेम करंट, राइट. एंड R4 जरा देखिए ना बच्चों, R4 कितना करंट जाएगा? I2. I2 जाएगा. ओके, दैट सिंपली मींस जितना करंट रेजिस्टर R1 से सेम करंट रेजिस्टर R2 से, एंड सेम वे जितना करंट R3 से सेम करंट रेजिस्टर R4 से. So this Wheatstone's balancing condition we are getting R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. प्लीज इन केस आप भूल गए हैं कि इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो अभी कर लीजिए. R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. स्टूडेंट्स प्लीज जरा आपको कनेक्शन को ध्यान से देखिएगा. R1, R2, R3, R4 आपने कैसे कनेक्ट किया है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी कैन डू वन थिंग, हम आपको न्यूमेरिकल पे ले जाते हैं. Numerical which are related to this Wheatstone's network and Wheatstone's balancing condition. Let me take you to next whiteboard now.
So the question goes like this, students. 4 resistances, 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm, and an unknown X ohm are connected in series so as to form Wheatstone's network. That means a quadrilateral तो confirmed form हो ही रहा है. Next, students, we have to determine the unknown resistance X if the network is balanced. So Wheatstone's network आपको form करना है students using total 4 resistors, right? Those 4 resistors are 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm, and the fourth one that you don't know, X ohm. So this is like perfect application of Wheatstone's network, students. Total 4 resistors are there. Out of total 4, किसी भी 3 का वैल्यू आप जानते हो, 4th का वैल्यू आप नहीं जानते हो. परफेक्ट है बच्चों, मतलब ये आपके लिए Wheatstone नेटवर्क, राइट? Yes. यस. एंड सामने से बोल दिया गया है द नेटवर्क इज बैलेंस, सो विद कॉन्फिडेंस यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन. बट इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेटा में मिस्टेक कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, सॉरी 5 ओम, R1 बाद में हम लेंगे. First resistance is 5 ohm, second is 10 ohm, third one is 15 ohm, and the fourth one is X ohm. Students, आप लोग मुझे डेटा रीड करके ये बताइए, these are the 4 resistors for you. इसमें से R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है, R4 कौन है, बताइए ना स्टूडेंट्स, ट्राई करिए. R1 is 5, R1 is okay. R3 is 15. And R4 is X, right dear? Okay. So students, मैं recommend करूंगा अभी कि आप लोग, हाँ तो जो आप लोग सोच रहे ना वही मैं कह रहा था बच्चों. मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे डेटा में मिस्टेक करते हैं. स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, एंड आई नो यू आर गुड ऑब्जर्वर. थोड़ा सा आप लोग ये सीरीज टर्म को लाइटली ले रहे हो बच्चों, दैट इज अ प्रॉब्लम. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स, आई कैन जस्ट शो अ रफ डायग्राम फॉर यू, because in your examination no need to show the diagram to the teacher, okay? और वैसे भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, so it will be for only 2 marks. So requirement is X, ये तो confirmed है students, ये लीजिए. For reference we can draw simple circuit, ज्यादा हम complicated नहीं करेंगे. 1 2 बच्चों 3 4, यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है. फाइन. सो हमने जो फॉर्मूला सीखा है R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, that is by considering this is R1, this is R2, this is R3 and this one is R4 students. सो क्वेश्चन में बोला है सीरीज, यहाँ पर स्टूडेंट्स सीरीज का सिग्निफिकेंस है the resistors are following this particular order students, ऐसे R1 R2 R4 R3 ऐसे बच्चों. So 5 ohm is actually R1, 10 ohm is the next one, that is R2,
then 15 ohm is R4 students, and the unknown resistance which is X for you is R3. Are you following this students? मैं क्यों डेटा में कह रहा था कि So we बच्चे need to गलती name it this way, right? yes Always. Can you just repeat your statement? Sorry, So मैंने we have to follow always this order, right? yes, if it is series in the question, bacha, Okay. you can mark this series as important term over here. And if nothing is said ना students, काफी valid doubt है, मैं समझ सकता हूँ क्यों आप लोग के दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ students. अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ Wheatstone's नेटवर्क है, Wheatstone's बैलेंसिंग कंडीशन है, then you can consider that serial order 1 2 3 4 R1 R2 R3 R4. अगर ये सेम क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स आपको सीरीज नहीं दिया होता तो पता है आप कैसे लेते? R1 R2 R3 R4. यहाँ सीरीज दिया, that is the reason we have to take this बच्चों. 1 2 4 and then it is 3. All right. Yes, sir. Okay, so students, can you just help me in this? Using Wheatstone's balancing condition, that is WBC. Using Wheatstone's balancing condition, हम कह सकते हैं R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. Students, please substitute all the values, बच्चा लोग. R1 5 ohm, R2 10, R3 X, R4 is 15. So I think students X will be 5 into 15, that is 75 divided by 10. 7.5. Perfect, sir. That is 7.5 ohm, students. So that unknown resistance X will be 7.5 ohm. Finish करिए students आप लोग इसे. I think एक और क्वेश्चन कम से कम हम इसके ऊपर कर सकते हैं related to this. Sir, these are only the types, right? Wheatstone. Yes, these are the numericals here which are related to that Wheatstone's. So this is type 1 problem. You can consider usually कैसा होता है ना dear, Wheatstone के जो numericals आते हैं मतलब they are straight away based upon Wheatstone, वो straight forward होते हैं dear. Okay. Like जो हमने आपको अभी solve कराया ये 7.5 वाला, okay. And Yes. I think that the numericals which comes in the board examination from this chapter are really very simple. I think that. Okay. So, but as far as NEET and JEE is concerned, then Yes, then the level is good. Then you have to just focus Okay. on the synopsis and all, dear. okay, the synopsis notes which is provided. Yes, yes, dear. Then yes, at that time synopsis is must. Okay. Yes, sir. But for board examination, as far as your current electricity is concerned, usually they don't ask very long question. Usually, I'm saying, right? Now let's move ahead, students. अगर पूरे पेपर में स्टूडेंट्स मतलब मैं बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा पेपर कंसीडर कर रहा हूँ 70 मार्क्स का है, पूरा 66 या 67 मार्क्स का सिंपल पेपर है, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं ऐसा बच्चों. ओके, बट यू शुड नॉट वरी है स्टूडेंट्स. आप लोग अगर ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच आई फील आप कर रहे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स. Resistors, in fact 4 resistors are there students. 4 resistors, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm and 12 ohm resistance are used to form a Wheatstone's network. Then find the resistance which when connected
across the 12 ohm resistance will balance the network. So total 4 resistors are there as usual. Those values are 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm and 12 ohm are used to form a Wheatstone's network. So हमारा first responsibility होगा that हम लोग एक Wheatstone's network यानी एक quadrilateral draw कर लेंगे students, where the 4 sides of quadrilateral are actually 4 values of resistors, 1, 2, 3, and this one is the fourth one. Okay, let me connect that basic things over here. Galvanometer G is connected. दूसरे दो जो अपोजिट वर्टाइसेस है उनके अक्रॉस हमने सेल कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, एंड सेल का जो आपको ईएमएफ दिया हुआ है दैट इज ई कैपिटल ई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. यस, यू कैन आल्सो शो अ की ओवर हियर स्टूडेंट्स. कन्वेंशनल करंट आई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अच्छा, अभी हम डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आएंगे स्टूडेंट्स. दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओहम, सेकेंड रेजिस्टेंस इज 4 ओहम, थर्ड रेजिस्टेंस इज 4 ओम. एंड बच्चों यहाँ पे कुछ सीरीज वगैरह नहीं बोला है, एंड अगर बोला होता ना, हाँ रैंडमली कर सकते हैं. यस यस, इसको तो रैंडमली कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई अननोन रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है स्टूडेंट्स. जो 12 ओहम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस यू आर कनेक्टिंग समथिंग, वो वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स. सो R1, R2, R3, R4, ये चार में से कोई अननोन होता है ना तो क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है. यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल वी विल फॉलो द रूल. R1 4, R2 4, R3 4 and R4 is 12. We'll follow the basic rule. Now I have a question for all of you students. क्या लगता है ये जो गिवन नेटवर्क आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, having 4 resistors as 4, 4, 4 and 12, क्या लगता है आपको, is the network balanced? no sir, the ratio will not come out same. Yes, the ratio will not be the same. तो अब हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, हमें इसे बैलेंस्ड नेटवर्क में कन्वर्ट करना है. दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन, एंड आई फील कि आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा. आपको नेटवर्क बैलेंस करना है. सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स. जो रेशियो होगा R1 अपॉन R2 एंड R3 अपॉन R4 का, दैट रेशियो शुड बी द सेम. सो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपको फोर्थ ब्रांच में रेजिस्टेंस 12 दिख रहा है, 12 ओम स्टूडेंट्स, उसके साथ पैरेलल में you have to connect some resistance students. Let me consider that resistance as X. समझा स्टूडेंट्स आपको? Yes, ये sir. okay. Students, I am going to ask all the 3 students a simple question. ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग स्मार्ट इनफ हो ये आंसर देने के लिए. ओके, टेल मी वन थिंग. 12 ओहम रेजिस्टेंस इज देयर, आप उसको 4 ओहम में कन्वर्ट करना चाहते हो. Yes or no? First of all, you tell me this. Yes sir. Okay. So students, one of the resistance, only one of the resistance is not equals to 4. बाकी 3 तो 4 है. तो लॉजिकल सी बात है ना स्टूडेंट्स कि जो 12 ओहम है उसे आप 4 ओहम में कन्वर्ट करना चाहते हो. So you are interested in decreasing the resistance. And students, you know the basic, right? जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा चाहिए होता है, so we use the combination for resistors in parallel. Yes students, perfect. in case आपको रेजिस्टेंस बढ़ाने बोला होता, that आपके पास 3 है, 3 का 4 करना है. Yes students,
3 ओहम को 4 ओहम में कन्वर्ट करना होता, आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ आपको कम करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर वो लोगों ने स्टेटमेंट में क्लियरली बोला है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेजिस्टेंस विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस। तो आपको इनडायरेक्टली हिंट मिला होगा, मैं जानता हूँ ये, बट Yes, अगर sir. अगर स्टूडेंट्स अक्रॉस नहीं बोला, स्टिल योर बेसिक्स आर क्वाइट क्लियर, यू नो दैट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, सो वी हैव टू यूज Parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन। परफेक्ट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 12 ओहम एंड अनदर रेजिस्टेंस इज x ओहम। अच्छा, मैंने एक जरा सा गलती कर दिया बच्चों, यहाँ पे 12 ओहम को मैंने एरो राइट में दिखाया था ना, मुझे यहाँ 4 लिखना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये ठीक है। मुझे 12 ओहम को 4 ओहम में कन्वर्ट करना है, इसका ये मतलब होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 12 ओहम को स्टूडेंट्स x ओहम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करूंगा to get the equivalent resistance as 4. So we know the procedure. When two resistors are connected in parallel, equivalent resistance होता है students product upon sum. 12x upon 12 plus x Yes sir, yes sir. equals 4. हाँ हाँ students, it will be product upon sum. So 12 into x divided by sum का मतलब होगा 12 plus x product upon sum, that is equals to 4 बच्चों। Now some mathematics is required over here. 4 into 3 will give you 12. So 3x is equals to 1 on right side divided by 12 plus x. I am doing copy paste cross multiplication students. 3x is equals to 12 plus x. That means the value of 2x students. 3x minus x, that is 2x is equals to 12. So x is equals to 12 by 2, that is 6 ohm students. Are you following this? कैसे हैंडल करना है इस टाइप का क्वेश्चन? Yes, sir. Yes sir. Okay. I'm waiting over here students. Still if there is any kind of problem, just let me know please. So students, now we are doing one thing. Last time when we met, I think हमने आपको certain applications का नाम बताया था, applications of Wheatstone's network. The very first application is called as students meter bridge. Okay, so we are starting with those applications now. So the very first one जो आपके syllabus में है, ये सही सुना आप लोगों ने, which is a part of your syllabus, is meter bridge. So we can put the heading students meter bridge. So now in case of meter bridge, the very first thing is that this meter bridge is an application of Wheatstone's network students. So many of the times, I repeat, many of the times, this meter bridge is also called as Wheatstone's meter bridge. So they might ask you this way or that way. आपको टास्क वही परफॉर्म करना रहेगा. So I think now we can start students. And yes students, one more thing I have to tell you that मैं अभी लाइव आपके सामने वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ. पर्पसली मैं लाइव ड्रॉ कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयरिंग से भी ये काम हो सकता था बच्चों, बट ड्रॉ करने का रीजन ये है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें. इट माइट टेक 2 or 3 minutes, बट इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस. सो स्टूडेंट्स प्लीज, आप अगर ऐसा बाई चांस कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा देखते जाइए, थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा ड्रॉ करते जाइए ऐसे. And you can also draw simultaneously with me students. So what I am doing students, मैं यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ. आप देख लीजिए कैसे ड्रॉ करना है वो कॉपर स्ट्रिप को. ओके,
this should be L-shaped copper strip. Students, you can consider this as C1. Right side, we can show one more copper strip over here. I am using stylus. students, आप लोग पेंसिल या पेन यूज कर रहे हो, राइट? तो मैं रिकमेंड करूंगा आपका जो डायग्राम है इट शुड लुक नीट एंड क्लीन. मेरे डायग्राम के कंपैरिजन में आपका डायग्राम काफी मुझे अच्छा दिखना चाहिए. सेकंड कॉपर स्ट्रिप स्टूडेंट्स हमने राइट में लिया है, जिसे हम नाम दे रहे हैं C2. दिस इज ऑल्सो एल शेप्ड बच्चों, and in between there is another copper strip over here. We can consider this is like bar shaped copper strip. Students, you can consider this as copper strip C3. over here connections के लिए students terminals provided होते हैं, वो terminals आप यहाँ पे represent कर सकते हैं. so one at the center over here, one terminal in C2 over here and one is over here. so हमें क्या करना है students, हमें copper strip C1 and copper strip C3 के across एक resistance connect करना है. right now I am just explaining you the circuit students. working मैं आपको draw हो जाने के बाद बताऊंगा, नहीं तो it might create confusion. so in between students the two copper strips C1 and C3, we are connecting a resistance. let's say that resistance is considered as X. okay, यहाँ पर हम ये जो C3 का सेंटर वाला पॉइंट है, हम उस टर्मिनल को नाम दे रहे हैं टर्मिनल B. स्टूडेंट्स, now in between copper strip C3 and copper strip C2 students, we are connecting a resistance, and that resistance we are naming it as R. and students ऐसा आपको arrow यहाँ represent करना है. इसका मतलब होता है this is variable. ये ऐसा arrow represent करने का मतलब होगा this is the variable resistance. students, अभी हम एक काम करेंगे. आपने C1 C3 के बीच में X कनेक्ट किया, C3 C2 के बीच में आपने R कनेक्ट किया. so now we are doing one thing students. ये पॉइंट को स्टूडेंट्स लुक एट C1 प्लीज. यहाँ मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ A. look at C2 now. this point I can consider as point C. students, now what we have to do is students, हमें A and C जो हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमें उनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना होगा. चेक दिस बच्चों, A and C are connected by a straight line, and this straight line students is actually a wire. this straight line जो हमने A and C के बीच में draw किया, that is a wire students. now what we have to do students, हमें जो wire AC दिख रहा है students, आप सबको wire AC, उसके ऊपर हमें somewhere over here, randomly मैं एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ, somewhere over here students हमें एक पॉइंट D कंसीडर करना है. on wire AC randomly we have to choose a point D, and then B and D को actually आपको कनेक्ट करना है, ऐसा एरो रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स. एंड B and D जो दो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस we have to connect a galvanometer G. and students ये जो galvanometer G आपने कनेक्ट किया है, it is connected on K dash. students, over here this K dash is called as jockey. this jockey is also called as sliding key. बच्चों, स्लाइडिंग की को हम K डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस स्लाइडिंग की इज पॉपुलरली टर्म्ड एज जॉकी. द टास्क इज नॉट येट ओवर. पहले हम सर्किट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने पे, राइट? सो नाउ लेट मी कंप्लीट द सर्किट स्टूडेंट्स. यहाँ से हम A से नीचे जा रहे हैं.
हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, बैटरी, there is a key ahead of that, and after this, beyond this, we are connecting students a variable resistor, and if it is variable resistor, it should be called as a Rheostat. rheostat. Perfect, sir. This variable resistor should be considered as a rheostat. So students, अब आपको क्या करना है, वायर सी का जो टर्मिनल है वहां से आपको एक एरो, लाइक एन एरो, रियोस्टैट तक ले जाना है. सो ये लीजिए, आपने सर्किट कंप्लीट कर लिया. स्टिल वी हैव सम माइनर टास्क टू बी डन इन द सर्किट, बट जो मेन चीजें थी जो सर्किट में दिखानी थी वो हमने कर लिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, हमें है ना इस एक्सपेरिमेंट में, मैंने अब तक पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है आपके साथ पर्पसली शेयर नहीं किया है. पहले सर्किट सामने होगा, ओके, तो एक्सप्लेन करने पे फायदा होगा स्टूडेंट्स. बट आप इतना, यस यस So सर, that red line which you had drawn with that galvanometer, could you just explain it again? यस यस आई कैन डू दैट. स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉपर स्ट्रिप सी दिख रहा है, उसके सेंटर पे देयर इज अ टर्मिनल, दैट टर्मिनल इज बी, एंड ऑन वायर AC आई एम कंसीडरिंग अ पॉइंट D. इन दोनों के बीच में मैंने G लिखा हुआ है, दैट G इज फॉर गैल्वेनोमीटर. एंड हमने वहां एरो क्यों दिखाया है स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज द स्लाइडिंग की. हम वायर के ऊपर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग दैट स्लाइडिंग की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉकी. स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने उसको K डैश लिखा है. अब ये भी सुन लीजिए सर आपके, sir. मैंने K डैश क्यों लिखा है, because already in the circuit, dear students, already in the circuit there is a key. जो की को हम K बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, की को हम K बोल रहे हैं. हम जब की K को प्रेस करेंगे, मतलब जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे, तो जो कन्वेंशनल करंट होगा स्टूडेंट्स, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये देखिए स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट आपको पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हुए दिखाना है. एंड एज फार एज sorry student, as far as students our circuit is concerned, current I is going to flow in clockwise direction, clockwise direction, clockwise direction. So students, basic circuit समझा आपको, मैं अभी सर्किट को आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ. बेसिक सर्किट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है आपको. So that jockey, the current can flow through it, right? वो मैं आपको बताऊंगा डियर, वो एक सस्पेंस sir. बनाए रखा है मैंने पर्पसली. So because something which is new to jockey. हाँ हाँ, यस यस, वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए डियर. Yes, sir. Sure. हम कहते हैं ना सस्पेंस इज देयर, सस्पेंस, हाँ. ऐसा ऐसा सर. ओके, सो स्टूडेंट्स ये देखिए, यस, मैं सर्किट में एक और टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स. मैं ये जो आपका सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ किया है मीटर ब्रिज का, मैं उसके अंदर एक मीटर स्केल ड्रॉ करना चाहता हूँ बच्चों. यू कैन ड्रॉ विथ मी, जैसा हमने रिसेंटली प्लान किया था. I will just see if I get some option. Yes, I'm getting this. So we can draw a meter scale students over here. Redraw कर लेते हैं इसको. This looks better. This looks better, students. So on the meter scale students, we can represent certain calibrations. 1 2 3 4 1 major 1, 1 2 3 4 1 major 1, 1 2 3 4 एक बड़ा बच्चों, 1 2 3 4 एक बड़ा. ऐसे हम कैलिब्रेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 1 major 1, 1 2 3 4 major, 1 2 3 4 major, and so on students. So likewise हमें मीटर स्केल में कैलिब्रेशन रिप्रेजेंट करने हैं. Let me just finish it quickly. So definitely students, आपने यहाँ पे मीटर स्केल यूज किया है. So you are interested in measuring some kind of length. तो ये जो ब्लू वाला अभी अभी हमने आपके सामने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, उसे हम नाम दे रहे हैं
meter scale. Yes, sir. So students, the very first thing that I am going to share with you is length of wire AC. Now students, हम लोग सबसे पहले ना सर्किट समझना स्टार्ट कर रहे हैं. सर्किट में एग्जैक्टली क्या है? बहुत कुछ आप जानते हो लेकिन सब कुछ आप नहीं जानते हो स्टूडेंट्स अबाउट द सर्किट. जिसे आप कह सकते हो लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्किट और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू कैन से लाइक दिस. सर्किट में आपने क्या क्या ड्रॉ किया है ऑल. ओके, so we can start like this. We have considered students first wire AC, and students length of wire AC is equals to 1 meter, and that is the reason students हमने इसे नाम दिया है meter bridge, because length of the wire is 1 meter. So एक obvious सा नाम मुझे देना है इसे meter bridge students. Okay, now we can say like this. meter bridge जो है हमारे सामने students, I think मुझे theory है थोड़ा आपको लिखवाना चाहिए. Okay students, ये देखिए मीटर ब्रिज जो है ना स्टूडेंट्स हमारे सामने. स्टूडेंट्स आई वांट टू आस्क यू समथिंग. आप लोग मेरे साथ नोट्स मेंटेन कर रहे हो या बाद में रिकॉर्डिंग से करने वाले हो? रिकॉर्डिंग से करेंगे. ओके, नहीं दैट इज द रीजन मैं पूछ रहा हूँ. मतलब देयर इज सम थ्योरी रिलेटेड टू दिस. मैं थ्योरी आपको समझा दूं और शुड आई जस्ट मेक दैट राइट ऑन दिस व्हाइट बोर्ड? आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू. राइट इफ पॉसिबल. ओके, आई हैव टू राइट. ओके, ठीक है ठीक है. नहीं मैं क्यों पूछ रहा था ना बच्चों, डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है इट इज नॉट द सेम ऑलवेज. कुछ बच्चों को थ्योरी लिखने का दे फील के सर थ्योरी लिखा रहे हमारा टाइम वेस्ट, इसलिए मैंने पहले क्लियर किया. ओके, सो हम थ्योरी लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम थ्योरी लिख रहे हैं. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो. स्टिल एनीवन? सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज के बारे में ना मुझे अभी वो वायर एसी का कुछ स्पेशलिटी आपके साथ शेयर करना है स्टूडेंट्स. सो मीटर ब्रिज, MB is for meter bridge, consist of students, it consists of a thin uniform homogeneous wire. जो एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का. सो इट शुड बी thin uniform homogeneous students conducting wire. That wire is AC 1 meter long, which is stretched on a rectangular wooden box. कुछ लोग वुडन बॉक्स नहीं बोलते हैं, कुछ लोग उसे वुडन बोर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स. So that wire, meter bridge actually consists of a wire, a thin wire, which is uniform. That means उसका area of cross section throughout constant है. It is homogeneous. That means it is made up of same material. Conducting, yes, because it has to be conducting for sure students, because हम चाहते हैं current उसके through flow होना चाहिए. Okay. Now, yes, मैंने कहाँ तक लिखवाया आपको? 1 meter long. Okay, stretched on that board, rectangular wooden board students. आगे मैं इसी में एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए. Between the two L-shaped copper metal strips. And students, can you name those two metal strips? Are those strips are C1 and C2 or something else? Yes, sir. C1 and C2. Sir, current will flow through those strips also. No, it will not flow, dear. मतलब आप ऐसा कह सकते हो dear कि wire is different and जो strips है ना सर वो अलग है सर. Strip अलग है, wire अलग है सर. I thought it's copper so conducting. Yeah, yes, copper is a good conductor. I totally agree with you. लेकिन सर हमने यहाँ पे ना टर्मिनल्स दिए हुए हैं पर्पसली. मतलब आप ये कह सकते हो कि वहां से कुछ वी कैन से डिफरेंट चीजें होने वाली और यहाँ से कुछ डिफरेंट. तो ये कॉपर स्ट्रिप से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा सर. ओके, यस सर. ओके, सर वी कैन डू वन थिंग. C1 मैंने आपको बताया. हाँ, मैं कहाँ था बच्चों? C1 एंड C2. ये लीजिए बच्चों, C1 and C2. So C1 and C2 are the two L-shaped copper strips
एंड उनके बीच में, उनके जो दो टर्मिनल थे ना स्टूडेंट्स, उनके बीच में हमने वायर कनेक्ट किया है, वायर का नाम इज AC। ओके, नाउ मैंने आपको C1 C2 के बारे में बता दिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग रिलेटेड टू C3 नाउ, C3। So there is a third copper strip, students. So the third copper metal strip, or you can say third copper strip, students, हम इसे नाम दे रहे हैं C3 is connected, students। ये मुझे लिखवाना है, हाँ बच्चों, ठीक है मैं लिखवाता हूँ। is connected at the center, center को हम नाम दे चुके हैं सर्किट में B, students, at the center, such that, now this is important students, such that namely left gap and right gap are connected. Left and right gap, students, I am using L for left, R for right, left and sorry, right gap are connected across the wire AC, across the wire, that wire is called as AC। and students below wire, ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ बच्चों, प्लीज कोऑपरेट। below wire AC we are connecting a meter scale। डेफिनेटली मीटर स्केल का टास्क होगा, हम मीटर स्केल को यूज करके कुछ लेंथ रिलेटेड चीजें मेजर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, यूजिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 इन दिस मैनर, हमने टोटल 2 गैप क्रिएट कर दिए हैं स्टूडेंट्स, नेमली लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। अब इसका फायदा आपको समझेगा व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कनेक्शन, जब मैं आपको कनेक्शन कैसे करना है ये समझाऊंगा स्टूडेंट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई वांट टू आस्क यू स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में आपको इसका प्रैक्टिकल हुआ है मीटर ब्रिज का? No sir, कॉलेज शुरू नहीं हुआ, कॉलेज शुरू नहीं प्रैक्टिकल नहीं हुआ। ओके, ऑफलाइन शुरू हुआ ही नहीं है, राइट डियर? No, sir. एंड ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन हुए, मे बी द ट्यूटर इज परफॉर्मिंग एंड आप लोग को कुछ No वीडियोस? sir, she has sent some videos of the spring mass oscillator from oscillation chapter. ऑसिलेशन, That's it, yeah. ओके, ये वाले चैप्टर से नहीं हुआ है, राइट? No sir, mostly she is going to send. ओके, शी इज गोइंग टू सेंड, मैडम सेंड कर, ठीक है मैं समझा। Sir, there are any YouTube videos so that we can actually visualize this thing? I have not recorded, let me tell you that first. I will just see if I get some good videos. Videos are many in number, you also know that. I will just see when I get free time, maybe tomorrow or day after tomorrow, I will just search, okay, and I will let you know accordingly if there Yes, are sir. good videos, okay? Videos तो बहुत Yes. सारे होते हैं, उसमें से थोड़ा सर्च करने में टाइम जाएगा डियर, okay? Yes sir. Okay, so yes, connections are there। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा था ना बच्चों, अगर ऑफलाइन प्रैक्टिकल हुआ है, हमारे आसपास सर्टेन कॉलेजेस आर वर्किंग, मतलब दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑफलाइन बेसिस, सो आई थॉट शायद आपका भी हो, इसलिए पूछ रहा था, और कोई रीजन नहीं था स्टूडेंट्स। सो मुझे ये क्लियर करना था स्टूडेंट्स कि आपको ऑफलाइन है तो कुछ चीजें आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यूजुअली मुझे भी ये पसंद नहीं आता है और ना ही सारे बच्चों को पसंद आएगा, मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ नहीं स्टूडेंट्स, फ्यू पॉइंट्स आर देयर, मे बी आप कह सकते हो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू 10 पॉइंट्स टुडे, उसमें से एक आध पॉइंट ऐसा होगा जो विदाउट परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल आपको समझ में ना आए। आर यू फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? सिर्फ एक आध स्टेटमेंट होगा, ट्रस्ट मी, और जब वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, आई जस्ट होप कि वो जल्द से जल्द हो जाए, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब हमें कनेक्शन समझने हैं स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज में हमें कनेक्शन समझना है, ओके? सो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। कैन आई से मीटर ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, अग्री? Yes sir. ओके, एंड व्हिटस्टोन्स ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हो? टू कैलकुलेट व्हिटस्टोन नेटवर्क। बच्चों मेन व्हाट इज द यूज ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क? यस, एनीवन? Sir, to calculate the unknown resistance. To calculate the unknown resistance, yes students, to calculate the unknown resistance, okay?
तो टोटल 4 रेजिस्टर्स होते हैं, टोटल देयर आर 4। आउट ऑफ द 4 हमें सिर्फ एक पता नहीं होता है, बाकी 3 हमें पता होने ही चाहिए। ओके, सो आप लोग ही बताइए स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन नेटवर्क का ही दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका मेन फंक्शन भी क्या होगा? टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, राइट? Yes. एंड स्टूडेंट जो आप लोग देख पा रहे हो, अननोन रेजिस्टेंस जो मैंने x कनेक्ट किया है ना, दैट इज बीन कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, एंड जो r आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, दैट इज कनेक्टेड इन राइट गैप। सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स, बाय द वे हम इसे स्वैप भी कर सकते थे बच्चों, हम r को लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर सकते थे एंड हम x को राइट गैप में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो अननोन होगा उसे लेफ्ट में ही कनेक्ट करना, लेकिन दो में से एक में नोन रेजिस्टेंस एंड जो दूसरा वाला है उसमें अननोन रेजिस्टेंस। सो हमारे सर्किट में स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डूइंग इन कनेक्शन, हमने ना स्टूडेंट्स जो अननोन रेजिस्टेंस है, दैट अननोन रेजिस्टेंस वी आर कंसीडरिंग x ओवर हियर, हमने उसे कनेक्ट किया है इन लेफ्ट गैप। सो LG इज फॉर लेफ्ट गैप स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स there is a resistance box. Students, resistance box over here means that there are so many values of resistor are available with you. So there is a resistance box. We are considering that resistance box as R, okay, and it is connected in another gap. Another gap means it is been connected in right gap. Students, हम ये जो R है ना, R उसे एक और नाम दे सकते थे, यू कैन कंसीडर दिस एज अ नोड। ये आर को जो हम लोगों ने ये मीटर ब्रिज वाले सर्किट में राइट गैप में कनेक्ट किया है, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स Known resistance. नोन रेजिस्टर, यस, एंड इट इज वेरिएबल। स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज नोन वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब इन केस we are due to some reason unable to get the desired output, so हम लोग ये R का जो वैल्यू है उसे वेरी कर सकते हैं। एंड मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे रियोस्टैट समझते हैं, एंड स्टूडेंट्स ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको समझाना क्यों? Sir, लेकिन resist. हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए बोलिए Sir, प्लीज in बोलिए। rheostat also we can change, right? यस सर यू कैन चेंज, हाँ मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। देखिए रियोस्टैट में कैसा होता है ना, रियोस्टैट का एक कॉमन नाम होता है, आई थिंक आपने भी सुना होगा बहुत बार स्कूल में कॉलेज में, वेरिएबल रेजिस्टर स्टूडेंट्स। Yes, sir. बट द कैच इज रियोस्टैट में जो आप रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हो, वेरी कर सकते हैं, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन उसका वैल्यू आपको पता नहीं है बच्चों, हाउ मेनी ओहम इट इज। तो ये जो R मैंने कनेक्ट किया है ना स्टूडेंट्स राइट गैप में, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल रेजिस्टेंस, बट दैट इज नोन बच्चों, नोन। उसका वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, इट इज देयर इन योर रेजिस्टेंस बॉक्स, सो यू आर यूजिंग अ सुटेबल वैल्यू ऑफ R। तो R का वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, नो डाउट वी कैन डू दैट, बट उसका वैल्यू हम जानते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, Yes, sir. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमने आपको लेफ्ट गैप एंड राइट गैप के बारे में बताया। चलिए अभी आप लोग मुझे, नहीं नहीं नॉट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग, बट आफ्टर सम टाइम, पहले मैं आपको थोड़ा कनेक्शन और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सो सम सिंपल नॉलेज इज देयर, आई थिंक आपको डायग्राम से समझेगा स्टूडेंट्स ये व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। स्टूडेंट्स हम लोग है ना, एक सेकेंड दीजिए मुझे, हाँ हम लोग है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे EMF कनेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज अ सेल। दिस इज वेरी सिंपल बच्चों, इट्स वेरी इजी फॉर यू। आप बोलोगे सर ये तो मैं कर लूंगा, तो मैं इसको जल्दी से करा देता हूँ बच्चों, एक मिनट में सिर्फ। सो देयर इज अ सेल ऑफ EMF E, देन देयर इज अ की का आप नाम दे रहे हो बच्चों के, एंड देयर इज अ रियोस्टैट, आप इसे RH लिख सकते हो, आर कनेक्टेड इन सीरीज, स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज with the wire, जिस वायर का लेंथ 1 मीटर है उसकी बात कर रहा हूं, वायर AC। सो ये कॉम्बिनेशन के बारे में एक और पॉइंट हमने आपको बताया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट होता है कनेक्शन का, इज अबाउट कनेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स कैन यू हेल्प मी इन दिस, कैन आई से वन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर? स्टूडेंट्स मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं,
अनफॉर्चुनेटली उतना स्पेस यहाँ है नहीं, तो मैं डिक्टेट करूंगा, मैं समझाऊंगा, आप देखिए आप फॉलो कर पाते हो क्या? स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, वी कैन डू वन थिंग, हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके उसका थ्योरी लिख लेंगे। सुनिए ना बच्चों, अब थर्ड कनेक्शन का पॉइंट है, आपको गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करना है। सो यू कैन से लाइक दिस, वन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर is connected at junction B of X and resistance box R. I am repeating that statement students. गैल्वेनोमीटर के टोटल 2 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट आपने बी पे रखा हुआ है एंड दूसरा पॉइंट आपने स्लाइडिंग की पे रखा हुआ है। तो आप बोलोगे कैसे स्टूडेंट्स, वन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज जी, वन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसको हमने जी से दिखाया हुआ है सर्किट डायग्राम में, इज कनेक्टेड एट जंक्शन बी एंड बी इज द जंक्शन ऑफ X and resistance box R. फर्स्ट पॉइंट के बारे में समझा स्टूडेंट्स आपको गैल्वेनोमीटर का? Sir, B is the junction of. B is students the junction of X. लेफ्ट में देखिए स्टूडेंट्स there is X, राइट में देखिए तो there is R. So can I say students B is the junction of X and R? दोनों के बीच में है ना स्टूडेंट्स वो? Yes, sir. Okay, yes. And now we talk about students second point. Second point I think आपको पता है कहाँ कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स। Second point of galvanometer is connected to the jockey. Jockey is also called as sliding key. Okay students? Yes, sir. Okay. तो मैं शॉर्ट में इतना लिखूं स्टूडेंट्स दैट जी नहीं, मैं पूरा लिख देता हूँ, galvanometer. Okay, galvanometer. One point students we are connecting to B and B is the junction of X and R, and students another point, or you call it as point number 2, point 2 of the galvanometer is connected to K dash. K dash का मतलब होता है students sliding key, also called as jockey. Are you comfortable up to this Yes, sir. students? Okay. ओके बच्चों, मैं थोड़ा और रुकूंगा, मैं दूसरे बच्चों का भी फीडबैक लेना चाहता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा थेरी है ना, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा वर्चुअल लेक्चर, बट मैंने देखा है यू पीपल आर वेरी गुड लिसनर्स। सो आप जैसे बच्चों को तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। Understood, sir. ओके यस, आई थिंक वन मोर स्टूडेंट इज देयर। सर आपको समझाइए क्या चल रहा है अच्छे से? इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो, अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा। Sir, हाँ sir, B exactly junction कैसे हुआ? हाँ सर बोलिए सर बोलिए। ये जंक्शन मतलब वही ना जो आपने स्टार्टिंग को बताया था। यू कैन कंसिडर Node. दैट वे। हाँ यू कैन कंसिडर दैट। देखिए सर अभी कैसा है ना, आपने कॉपर के स्ट्रिप्स यूज किए हैं, राइट सर? Yes. अच्छा, तो अभी मैं हम कहते हैं ना हिंदी में, हम लोग वो सस्पेंस धीरे धीरे करके खोलने जा रहे हैं ऐसा। ओके हाँ सर. सो सर कैसा कर रहे हैं ना हम लोग, जो कॉपर के स्ट्रिप्स है ना हमारे पास C1 C2 C3, दे आर एक्चुअली इंटरनली कनेक्टेड, दे आर इंटरनली कनेक्टेड। सो देर इज अ पॉइंट बी जो C3 के सेंटर में है। ओके तो B के लेफ्ट में क्या है सर, रेजिस्टेंस X इज देयर। ओके एंड B के राइट में सर देर इज रेजिस्टेंस R। सो B जो है ना, B स्टूडेंट्स वो X एंड R के बीच में है। ओके एंड दैट्स व्हाई B इज एक्टिंग एज अ जंक्शन फॉर X एंड R। ओके Yes, sir. ओके नाइस। सो स्टूडेंट्स आई थिंक वो स्टूडेंट के वहां पता नहीं पूरा, मुझे लग रहा है नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम होगा। वी आर मूविंग अहेड बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नाउ स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कनेक्शन, मतलब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हमें एक लास्ट स्टेप का ध्यान रखना होगा। प्लेस स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्लेस जॉकी, जॉकी का मतलब स्लाइडिंग की, तो मैं शॉर्ट में के डैश लिख देता हूं स्टूडेंट्स। प्लेस के डैश एट पॉइंट ए स्टूडेंट्स, ए वायर AC का पॉइंट ए, प्लेट सॉरी प्लेस के डैश दैट इज प्लेस जॉकी एट पॉइंट ए and then at point C.
ये समझा बच्चों क्या करना है? मैं कह रहा हूं कि रीडिंग लेने के पहले, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कनेक्शन किया, आपने करंट आई फ्लो करवाया, स्टेडी करंट आई फ्लो करवाया, आप लोगों ने लेफ्ट गैप क्रिएट किया, राइट गैप कनेक्ट किया आपने, सॉरी राइट गैप क्रिएट किया आप लोगों ने, लेफ्ट गैप क्रिएट किया आप लोगों ने, गैल्वेनोमीटर आपने बी एंड के डैश के बीच में कनेक्ट किया। अब लास्ट स्टेप है कनेक्शन का, मतलब इसके बाद हम रीडिंग कैसे लेना है ये समझेंगे स्टूडेंट्स। सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद दैट रीडिंग वाला पार्ट, हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा, वो ये है, वी हैव टू फर्स्ट प्लेस के डैश at point A and then we have to keep K dash at point C. अब करना क्या है स्टूडेंट्स आपको? डेफिनेटली आप लोगों को गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा, so students you have to take care that the two deflection should be in opposite direction. so students मैं एक काम करूं, मैं ये जो लास्ट पॉइंट मैंने रेड से लिखा ना कनेक्शन वाला, उसके ऊपर मैं एक एस्ट्रिक मार्क कर रहा हूं। This step is important for you. I can even mark a star. I think asterisk से better star है. I can mark a star over here. Students, reading लेना शुरू करने के just पहले, we have to take care about last step of the connection, that we will keep sliding key at A, then we will keep sliding key at C. We will note down the deflection of galvanometer. एक बार स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने रीडिंग नहीं देखा, मतलब इट इज हाउ मेनी एम्पियर, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये देखना होगा that the two readings should be in opposite direction. If at point A you are getting deflection in clockwise direction, then at point C you will be getting, students, that current, that deflection in anti-clockwise direction. The two deflections should be in opposite direction. Are you following students? क्योंकि इसके बाद हम रीडिंग लेना स्टार्ट करने वाले हैं। So the galvanometer also measures direction, right? Yes, 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 dear. Along Galvanometer. with current. हाँ, I will. Yes, it will give you the magnitude of current, dear, for sure, and it will also give you the direction of current, whether it is clockwise or is it anti-clockwise, right, dear? So for that, it shows plus or minus sign. I will do one thing. मैं आपको ना डियर एक बेसिक हिंट दे देता हूँ, ओके? आई थिंक उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो बेसिक व्यू देखना है ना गैल्वेनोमीटर का, मैं एक तरीके से उसका आपको टॉप व्यू, हम कहते हैं ना स्टूडेंट टॉप व्यू, वैसे दिखा देता हूँ, टॉप व्यू ऑफ योर गैल्वेनोमीटर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको over here there will be some circular scale and all, okay? हाँ स्टूडेंट्स, तो एक काम करेंगे, हाँ मैं ज्यादा अभी गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मतलब नॉट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ इट, ओके? टाइम आने पे हाँ वो भी करेंगे स्टूडेंट्स हम, सही टाइम आने पे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स दैट दिस एरो दैट आई एम शोइंग स्टूडेंट्स इज टर्म्ड एज पॉइंटर, and this pointer is right now, as we can see, it is at the center बच्चों, and ये स्केल का जो जीरो होता है ना बच्चों, वो सेंटर पे जीरो होता है बच्चों। आपका जो मीटर स्केल होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, it starts with 0, right? Then 1 2 3 4 5 etc. गैल्वेनोमीटर में especially if we talk about MCG बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें पॉइंटर अगर सेंटर पे है तो हम कंसीडर करते हैं दैट बिल्कुल भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ऐसे होगा स्टूडेंट, दिस इज 1, राइट? सॉरी, दिस इज 0, राइट साइड देयर इज 1, देयर इज 2 आफ्टरवर्ड्स, देयर इज 3 आफ्टरवर्ड्स बच्चों। सेम वे लेफ्ट साइड देयर विल बी 1, देयर विल बी 2, देयर विल बी 3। सो डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ना, वो दोनों मतलब साइमल्टेनियसली नहीं है बच्चों, वो दोनों डायरेक्शन में इट कैन मूव, इट कैन रोटेट स्टूडेंट्स। आर यू फॉलोइंग दिस? Yes, sir. ओके, सो स्टूडेंट्स द सेंटर, ओके आई रिपीट, द सेंटर इज एक्चुअली फॉर 0। इसी से आपको स्टूडेंट्स करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलेगा। एक सिर्फ Yes, मैं, यस दैट्स नाइस, एक बार मैं बीइंग अ टीचर मैं हमेशा कहता हूँ ना आपको, हमें थोड़ी सी बच्चों की ज्यादा चिंता होती है कि बच्चों को पूरा समझाए कि नहीं।
once I will like to just cross check, don't feel bad about it. स्टूडेंट्स, आपके व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, मे बी टू व्हीलर, मे बी फोर व्हीलर, बच्चों मैं वो डिजिटल वाला कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, समझे ना, जिसमें आपको डायरेक्ट रीडिंग दिखता है, वो नहीं। Yes, sir. मैं एनालॉग वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें पॉइंटर होता है बच्चों, टॉर्क से जो घूमता है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं स्पीडोमीटर का जो सेंटर होता है, सेंटर नहीं कह सकते, हाँ, स्पीडोमीटर का जो जीरो रीडिंग होता है, दिस इज बेटर फ्रेमिंग, राइट। सो स्टूडेंट, स्पीडोमीटर का जो जीरो रीडिंग होगा, क्या वो सेंटर पे होगा या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा या एक्सट्रीम राइट पे होगा बच्चों? लेफ्ट में होगा। आई थिंक इट इज राइट, यस। दूसरे स्टूडेंट क्या कहते हैं इस बारे में स्टूडेंट्स? इज इट एट द सेंटर और इट इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट? आई थिंक दे आर थिंकिंग। चलेगा चलेगा, सोचिए ना बेटा, फिर बताइए। एंड स्टूडेंट्स, इट इज इन एक्सट्रीम लेफ्ट एक्चुअली। सो स्पीडोमीटर में जब भी व्हीकल का स्पीड जीरो है, तो स्पीडोमीटर का रीडिंग जीरो होगा फॉर श्योर। एंड जीरो मतलब जो पॉइंटर है ना स्टूडेंट्स, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। और अगर हम एमसीजी की बात करें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो उसमें जो पॉइंटर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं बच्चों, वो सेंटर पे होगा। समझा स्टूडेंट्स आपको दोनों में देयर इज अ डिफरेंस? बच्चा लोग, डिफरेंस है। आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चा लोग, जस्ट लेट मी नो अकॉर्डिंगली। ओके, थिंग्स लुक्स गुड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर नाउ वेल अवेयर ऑफ द सर्किट। आपको कैसे कनेक्शन करने हैं, क्या क्या कनेक्ट करना है, रियोस्टैट, लेफ्ट गैप, राइट गैप, वायर एसी, आपको सब कुछ पता है। सो दिस इज स्टूडेंट्स द परफेक्ट टाइमिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग। ओके Sir, यस sir, सर। you have shown in this diagram. So when the pointer deflects towards the right, that is clockwise, right? Which you just said. When it, yes, you are talking about this diagram, right? yeah, of galvanometer. Yes, you can consider it to be clockwise, but this is not something which is universal, dear. That is the problem. Okay, Okay. so you right can be anti-clockwise also. yes, because वो अभी ये फैक्टर पे भी डिपेंड करता है ना सर, कि आपने गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट किया है सर। ऐसा हो सकता है सर कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, रिवर्स भी हो सकता था सर। तो आप कैसे कनेक्ट करते हो उस पे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम डियर, दैट इज द रीजन। मैंने भी, आपने अगर सुना ध्यान से, तो मैंने ये नहीं बताया कि राइट की तरफ क्लॉकवाइज करंट होगा, लेफ्ट, मतलब ये पक्की बात है स्टूडेंट्स, बाई चांस। एक काम करते ना स्टूडेंट, मैं आपको वो सर्किट का सेटअप बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दैट लास्ट स्टेटमेंट जो हमने आपको कनेक्शन में बताया था? मैंने कहा था यू आर कीपिंग पॉइंट ए, नो, you are keeping that jockey at point A. So let's say students, your galvanometer is showing deflection towards right. Okay बच्चों, so अगर बच्चों आप पॉइंट बी पे अपना स्लाइडिंग की रखते हो ना, बी पे, so the deflection should be towards left, मतलब ऐसे बच्चों, it has to be in opposite direction. इसका सीधा सा मतलब होगा, इनडायरेक्ट मतलब होगा दैट आपके सभी कनेक्शंस प्रॉपर है डियर। ओके यस सर। ओके, एंड स्टूडेंट्स, अगर आप राइट में क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हो, सो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज। बाय द वे रिवर्स इज आल्सो ट्रू, बट आप समझने के लिए फर्स्ट वाला पॉइंट याद करोगे तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ कैन वी मूव अहेड स्टूडेंट्स? यस सर। Okay. So students, let me take you to this circuit diagram of meter bridge once again. Students, हम इतना जानते हैं that this is one of the application of Wheatstone's bridge, Wheatstone's balancing condition. अब स्टूडेंट क्लियरली सोचेगा, सर आपने कब से मुझे मीटर ब्रिज के बारे में बताया, आपने ये नहीं बताया कि हम इसको Wheatstone's नेटवर्क का एप्लीकेशन क्यों कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ। पहले मुझे आपको सर्किट समझाना था, समझाया, कनेक्शन बताना था, कैसे करना था, हमने किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग कैसे लेना है। वहां से आपको क्लियरली समझ जाएगा दैट व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस एज one of the application of Wheatstone's network. Students, so the thing is,
आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग पहले टीचर को ये बताइए, आप लोग टीचर को ये बताइए, हमने एक सूटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आर राइट गैप में कनेक्ट कर दिया, हमने की के को प्रेस किया, मतलब हमने सर्किट को क्लोज किया, एक स्टेडी करंट आए हमने सर्किट से फ्लो होने दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, बच्चों के डैश को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैन यू टेल मी? जॉकी। जॉकी, यस। दिस जॉकी इज आल्सो कॉल्ड एज बच्चा लोग स्लाइडिंग की। स्लाइडिंग की एज द नेम सजेस्ट, हम ये जो की आपको दिख रहा है ना बच्चों के डैश, हम उसे स्लाइड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूअसली जो के डैश है ना, उसे ए से सी के बीच में n number of times टैप करेंगे। So K dash we will tap over here on the wire, हाँ बच्चों, on the wire is. Next point we are tapping, 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 tapping. Students, if you are pointing, नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे कहना था if you are tapping, yes बच्चों, if you are tapping K dash at n number of points on wire AC, there will be a single point. There will be a single point, by the way, not more than one बच्चों. There will be a single point when your galvanometer shows zero deflection, students. और अगर आप ये सर्किट डायग्राम को सीरियसली ले रहे हो ना बच्चों, तो जो पॉइंट डी है ना स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट डी, राइट, वो पॉइंट डी को मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम देने वाला हूँ zero deflection point बच्चों. So D over here is called as zero deflection point. Students tell me, wire is wire AC, conducting wire है AC, जिसका लेंथ है 1 मीटर. Can I say like this, हमने K dash को यानी स्लाइडिंग की को टैप करना शुरू किया, कहाँ पे, वायर AC पे, and we are going to tap at n number of points. एंड स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली कहां पर टैप करना है और आपको कितना टाइम जाएगा, ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट, because there will be a unique point, I repeat, there will be a unique point where your galvanometer will show zero deflection. Are you following, students? Yes sir. यस सर, ओके। सो स्टूडेंट सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा, और प्रॉब्लम ऐसा है ना बेटा, वायर एसी 1 मीटर लेंथ है, तो उसके ऊपर लेट्स से यू आर गोइंग टू टैप एटलीस्ट 30 टाइम्स मे बी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन बिटवीन वायर एसी, यू आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली टैप इट टैप इट टैप इट। एक ही पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझा जीरो डिफ्लेक्शन मतलब आईजी कितना होगा, आईजी 0. वेरी गुड, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब जो आप स्मार्ट बच्चे हो, आप जो स्मार्ट बच्चे उन्हें समझ रहा है कि हम इसको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का एप्लीकेशन क्यों कह रहे थे। आपको IG इज इक्वल्स टू जीरो ऑलरेडी मिल चुका है स्टूडेंट्स, IG इज इक्वल्स टू जीरो। सो अब आगे वर्कआउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सो आई एम डूइंग वन थिंग नाउ, चेक दिस स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले तो WBC लिखवाया यहाँ पे, Wheatstone's balancing condition. Students, I am not drawing the entire Wheatstone's network. Please cooperate with me. What I am doing is, मैं सिर्फ वो 4 रेजिस्टर आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, this is R1, this is R2, no, that is R2 over there. Give me 1 second. This is R2 students, this is R3, this is R4. स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, आपने गैल्वेनोमीटर जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है, ओके, सर्किट के हिसाब से, आई विल टेक यू बैक टू द सर्किट, सर्किट के हिसाब से वो दो पॉइंट कौन से है बच्चों, आउट ऑफ दोस 4 पॉइंट्स ABCD? B and D. बी एंड डी। प्लीज बी अ गुड ऑब्जर्वर बच्चा लोग, अगर बाय चांस आप में से कोई लाइटली ले रहा है, सो आई थिंक यू आर गोइंग टू लूज समथिंग प्रेशियस बाय चांस, वैसे मुझे पता आप ध्यान दे रहे हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स we are connecting galvanometer across the 2 points B and D। ये देखो बेटा BD, यहाँ B है, यहाँ पे D है, let me erase this ink,
बी एंड डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ये लीजिए बच्चों। सो दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी। एंड अगर हम वायर की बात करेंगे बच्चों, आपको याद है हमने वायर को एंड बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है, या भूल गए आप लोग? बच्चों बताइए टीचर Yes, को। sir. याद है. याद है, ओके। सो कैन आई से दैट वायर इज एक्चुअली वायर एसी बच्चा लोग, वायर एसी, वायर एसी जिसके साथ सीरीज में बैटरी कनेक्ट किया है। सो एक्चुअली आपने एक क्वाड्रिलेटरल ही तो फॉर्म कर दिया स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बी एंड डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, एंड ए एंड सी के बीच में जो एक्चुअली हमारा वायर है उसके साथ तो हमने सीरीज में बैटरी कनेक्ट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू कैन हेल्प मी इन दिस। कैन आई से द बैलेंसिंग कंडीशन ओवर हियर विल बी R1 upon R2 is equals to R3 upon R4 स्टूडेंट्स। चेक करिए स्टूडेंट्स, ये देखिए। Sir, यस yes, सर। sir. Sir, Yes. I got confused. AC कैसे connect किया? हाँ, मैं आपको वापस सर्किट पे ले जाऊँ सर, गिव मी वन हाँ सेकंड। sir. यस, गिव मी वन सेकंड। स्टूडेंट्स ये देखिए स्टूडेंट्स, कैन आई से AC जो एक्चुअली एक वायर है, हमने वो वायर के साथ सीरीज में EMF E कनेक्ट किया हुआ है डियर, राइट? Yes, sir. तो हमने जो बैटरी कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली वायर AC के अक्रॉस ही किया है, सीरीज में मुझे कहना चाहिए, ताकि वायर AC से ना स्टूडेंट्स करंट फ्लो हो सके। वो करंट को हमने I नाम दिया है स्टूडेंट्स, राइट? और एक Yes. बार देखिए, और एक बार ट्राई करते, वील ट्राई वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम डियर। सुनिए ना, वायर AC आपको दिख रहा है डियर, कैन आई से वायर AC से करंट I फ्लो होने वाला है डियर। Yes, sir. ओके, सो आप मुझे ये बताइए, ये I करंट कहाँ से आया सर, कहाँ से आया? बैटरी से आया? Battery से. बैटरी से आया, ओके। मतलब EMF से आया, E से आया, जो हमने वायर AC के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, राइट? Yes, sir. Series में. Okay, so now I will take you to that rough diagram related to Wheatstone network. अब देखिए ना डियर, A and C से कैन आई से वायर AC से मुझे कहना चाहिए करंट I जा रहा है सर, ये देखिए। एंड A से I can say like this students, if A I am considering as a junction, so towards the junction can I say current I flow हो रहा है, okay? Yes, sir. Okay, now students you consider junction C over here. Can I say C के बाहर जो करंट जाएगा वो भी तो I होगा स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस, और वही तो हमने सर्किट में दिखाया है स्टूडेंट्स। कंपैरिजन इज मस्ट बच्चों, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। चेक करिए स्टूडेंट्स, आप ही देखिए, लुक एट दिस जंक्शन A और यू कैन से पॉइंट A ऑफ वायर AC। कैन आई से उसके अंदर करंट I गया बच्चों, चेक करिए, ओके। एंड पॉइंट C से बच्चों ऐसे बाहर कितना करंट आया? I। I. हाँ, और वही तो स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन्स ब्रिज के नॉर्मल सर्किट में हम लोग अब तक कंसीडर कर रहे थे, राइट? एक और बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। सो ए से अंदर, मतलब आप डायग्राम के हिसाब से देखें तो राइट के तरफ करंट आई गया जंक्शन ए के तरफ, जंक्शन सी से राइट के तरफ, जंक्शन सी से राइट के तरफ करंट आई गया। यहाँ तक ठीक है सर? हाँ sir. Okay, so now students, now the twist is out of the four resistance, आपको देखो, आपको इतना तो पता है बच्चों, out of the total four resistance R1, R2, R3, R4, हमें एक फाइंड आउट करना है, तो बाकी के तीन हमें पता होने चाहिए। अग्री डियर? Yes, sir. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कैन आई से लाइक दिस, हमने सर्किट में जो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो एक्चुअली अननोन रेजिस्टेंस है। दैट अननोन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस X। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जो R1 है ना बच्चों, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में जो हम R1 कंसीडर करते हैं इन मीटर ब्रिज, दैट इज X बच्चों। इतना Yes, समझा sir. आप लोगों को? ओके। हाँ sir. सो स्टूडेंट्स राइट गैप में आ जाते हैं आपके टीचर अभी। राइट गैप स्टूडेंट्स, हेल्प योर ट्यूटर इन राइट गैप स्टूडेंट्स। आपने कौन सा रेजिस्टेंस? आर। R. आर का पूरा नाम बता सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग?
Variable resistance. Variable resistance, yes. But do you know the value of R, or it is Yes, unknown? it Like is known, it is known. Perfect answer. but it is can be known. changed. It can be changed, but you know the value, whatever you are Yes, sir. changing, you know, right? So students, again, I will be giving you a hint. Okay, so R2 का बच्चों वैल्यू Wheatstone's नेटवर्क में जो हमने R2 लिया था वो इस बार R है. ओके डियर? Yes, sir. Okay, now students, what about R3 and R4? Unfortunately, R3 and R4 का रीडिंग हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा. डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जो बेसिक नॉलेज है ना स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, दैट वी आर गोइंग टू यूज. एंड आई थिंक सिद्धांत सर आप बात कर रहे थे अभी रिसेंटली, राइट सिद्धांत? हाँ सर. ओके, देखिए सर कैसा था ना, आई थिंक आपने मुझे रफली 30 मिनट्स पहले एक सवाल पूछा था कि सर दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स एंड ऑल. ओके, आपने एक सवाल पूछा, आप ही थे ना वो? हाँ सर. यस. सो डियर, दिस कॉपर स्ट्रिप्स आर एक्चुअली इंटरनली कनेक्टेड. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यस, दीज आर कंडक्टिंग स्ट्रिप्स जिसमें ऑलरेडी हमने इंटरनली कनेक्ट किया हुआ है सब कुछ. हमें सिर्फ क्या करना होता है ना डियर, जब हम लोग ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो हमें जैसी जरूरत होती है वैसे हमारे सर्किट में कनेक्शन करना पड़ता है. ओके, यस सर. सो दैट मीन्स अगर आई के पास, सॉरी, अगर पॉइंट ए के पास करंट आई पहुंचा, सो कैन आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ करंट एक्स से फ्लो होगा, राइट? हाँ सर. एंड स्टूडेंट्स कुछ करंट आर से भी फ्लो होगा, ऑलराइट? यस सर. एंड आप ये भी जानते हो स्टूडेंट्स, x is actually R1, R is actually R2. So R1 R2 से तो बच्चों सेम करंट फ्लो होता है ना, जिसको हम I1 नाम देते हैं, राइट बच्चों? चेक करिए, याद करिए, I1. यस. सो बच्चों ये तो ऊपर से I1 चला गया, एंड नीचे से जो करंट जाता है दैट इज I2 बच्चों, विच इज एक्चुअली वायर फॉर यू. वायर फॉर यू, वायर फॉर यू. वायर से स्टूडेंट्स आपका करंट जा रहा है I2. वायर फॉर यू, वायर फॉर यू, वायर फॉर यू. अब आपको क्या करना है, मैं कह रहा था आपसे, यू हैव टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स, हिंट दे देता हूं मैं आपको, R3 एंड देन यू ऑल्सो नीड R4 स्टूडेंट्स. यू नीड R3, यू ऑल्सो नीड R4. तो वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? आई एम राइटिंग अ फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. आप देखिए, आपको समझता है क्या फॉर्मूला वो? R is equals to rho into L by A students. R is equals to rho into L by A. Over here, this R basically means resistance. Then we have rho. This rho is giving you the answer of resistivity. This rho is resistivity, students. Now this resistivity, students, depends on material of the wire. Let me remind you, this resistivity, students, is also called as specific resistance. In case, Yes, okay, in case students 10th and 11th में आपने lightly लिया था in case, तो प्लीज अभी अच्छे से देख लीजिए एटलीस्ट. Rho is for resistivity, that is specific resistance. Its value depends on the material, students. L, then we have L, you know that students, L is for length of your conductor, and there is A also in the formula. A is for students area of cross section of conductor. Perfect sir, perfect. So A will be area of cross section of your conductor. So we know this basic formula for resistance. R is rho into L by A, and students, in our case R3 is actually resistance, बच्चों resistance of, can I say बच्चों, इसके लिए मुझे आपको वापस डायग्राम पे ले जाना है. This will take some efforts, but trust me, बहुत फायदा होगा बच्चों इससे. स्टूडेंट्स ये देखिए, कैन आई से, हमने वायर को जब भी नल डिफ्लेक्शन हमने देखा ना स्टूडेंट्स, तो हमने वायर को कैन आई से दो हिस्सों में बांट दिया बच्चों. द फर्स्ट पार्ट इज AD एंड स्टूडेंट्स द सेकेंड पार्ट इज DC. हमने
जब नल डिफ्लेक्शन देखा स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0 डिफ्लेक्शन, सो बी से डी बिल्कुल करंट फ्लो नहीं हो रहा है, Ig इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। सो हमने वायर AC को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ना हिंदी में बांट दिया, स्प्लिट कर लिया। वैसे फर्स्ट सेक्शन इज AD एंड सेकेंड सेक्शन इज DC। सो एक्चुअली बच्चों AD का कुछ लेंथ होगा, I will consider that as LX स्टूडेंट्स। सर X क्यों? सर हाँ यस सर। सर एडी और डीसी है वो कुछ रेशियो में स्प्लिट हुए ना, मतलब नॉट यस इक्वली। सर, यस नॉट सर, यस इक्वली। सर, नॉट इक्वली। अब वो एक्चुअली से डिपेंड करता है X का हाँ, सर। वैल्यू क्या है। बाय चांस X का वैल्यू R का वैल्यू सेम है सर, तो इट हाँ, विल सर। बी इक्वल स्प्लिटिंग, D विल बी एट द सेंटर सर, D विल बी एट द सेंटर। ओके, ओके सर। बट ज्यादातर बार ना स्टूडेंट, ज्यादातर बार X का वैल्यू R का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, तो D आपको ज्यादातर बार सेंटर पे नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, जो लेंथ ऑफ वायर AD है ना, AD, आई एम कंसिडरिंग दैट लेंथ एज LX। सर X क्यों लिखा आपने? आप खुद चेक करिए बच्चों, लेफ्ट गैप के सामने वाला लेंथ है वो, लेफ्ट गैप में आपने कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट X किया है। है? X, परफेक्ट। So students, can you tell me right gap LR. के length को? LR, yes students. So LR it is length जो resistance R के सामने है, LR. So क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स? अब मैं आपको वापस करंट बोर्ड पे ले जाऊंगा। R3 व्हीटस्टोन में जो R3 होता है वो हमारे मीटर ब्रिज में एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन AD है बच्चों। अग्री? ये पॉइंट समझा आप लोगों को? Yes sir. Okay. What about R4 students? Resistance of section DC. Perfect answer, sir. So students, resistance R4 is actually resistance of section DC, that right वाला length बच्चों, right वाला length which is DC. अब हमने क्या किया हुआ है? हमने R1, R2, R3, R4 सब लिख लिया है स्टूडेंट्स। Now I think the task is almost done students. It's very easy now. Instead of R1 we are going to put X. ये X unknown resistance से divide by बच्चों, what is R2R? That is equals to, students tell me, R3 divide by R4 is there. आप लोग R3 को क्या लिखने वाले हो स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। टेल मी स्टूडेंट्स, R3 को आप क्या लिखने वाले हो? रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD। यस सर, डिवाइडेड बाय resistance of DC. हाँ DC, यस सर। सो R4 स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन में जो R1, R2, R3, R4 होता है वो सबको हमने मीटर ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रिप्लेस करना है ये हमने कवर किया। सो R3 इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, then we have R4 students. R4 is like resistance of wire DC. Perfect sir, perfect. Students ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड X डिवाइड बाय R, वी कैन डू जस्ट कॉपी पेस्ट, उसमें तो कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं। राइट साइड आपको काफी मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, राइट साइड। सो X ओवर R, लेफ्ट साइड एज इट इज। अब ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, कैन यू हेल्प मी? रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD बच्चों आपको पता है ना कि आपने वो वायर AC के नीचे मीटर स्केल यूज किया हुआ है। हाँ सर। So let's say students, let's say कि AD length is 40 centimeter. AD length is 40 centimeter. So can you tell me students, DC length कितना होगा? DC 100 minus 40, 60. yes sir, that is 60 centimeter. Superb, superb. So students आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे आपको एक्चुअली लेंथ मिलेगा बच्चों, आपको LX मिलेगा, आपको LR मिलेगा, बट वी नो दैट स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आपको जब रेशियो ऑफ लेंथ मिलेगा, इनफैक्ट आपको जब लेंथ मिलेगा, आप लोग लेंथ का रेशियो डिटरमाइन करोगे, वही रेशियो तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का होगा। एंड मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा ही रहा हूं बच्चों, जस्ट गिव मी 1 more minute प्लीज। X upon R students is equals to
Now resistance of wire AD, students, can I say resistance will be rho into L upon area of cross section, and AD wire जो है उसका length I think we have considered LX, students. Divide by, students, there is resistance of wire DC. Basic formula for resistance in terms of length, in terms of resistivity, looks like rho into LR by. yes sir, L by A. L is LR, students. Perfect है आप सर. So students, आप ही देखिए क्या जो रेजिस्टिविटी है वो कैंसल हो जाएगा या आपको लग रहा है सर इट विल बी रो 1 एंड रो 2 सम So A डिफरेंट? will also cancel. Yes, students, रो कैंसल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी विल कैंसल, बिकॉज आपने जो वायर AC यूज किया हुआ है इट इज अ होमोजीनियस वायर. It is throughout made up of a uniform material, and for same material ना students resistivity same रहता है, तो रो cancel. अच्छा, I have one more question for all of you students. Wire homogeneous है तो resistivity same है तो आपने cancel कर दिया. Next question is, क्या आपके पास जो वायर AC है वो यूनिफॉर्म है students? यूनिफॉर्म, tell me Yes. students. Yes, it is a uniform wire. यूनिफॉर्म वायर का मतलब होगा स्टूडेंट्स उसका जो एरिया ऑफ Area क्रॉस सेक्शन है same. थ्रू आउट सेम है. परफेक्ट सर. Yes, sir. सो स्टूडेंट्स एरिया भी आपने कैंसिल कर लिया. दैट मीन्स you will say now x over r will give you lx divided by lr. Students, x over r will give you lx divided by lr. We can do one more thing students. now हम इसको ऐसे लिख सकते थे x over r is equals to lx divided by students the length of wire is 1 meter. हम जानते हैं इसीलिए तो हमने इसे मीटर ब्रिज बोला. मीटर ब्रिज. 100 minus LX. यस सर. इंस्टेड ऑफ LR राइट से जो लेंथ होगा ना बच्चों वो होगा 100 माइनस जो लेंथ लेफ्ट से है विच इज LX. तो आप LX तो ऑलरेडी जानते हो ना स्टूडेंट्स, आप LX को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. X जो वेरिएबल रेजिस्टर है बट इट इज नोन, वो भी आप जानते हो. सो आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स कैलकुलेटिंग X विल बी a tough task for you now. X unknown resistance X जो हमने यहाँ पे लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है is equals to R multiplied by students LX over 100 minus LX. Minus LX. Yes, sir. Yes students. So ये लीजिए students, ये entire हमारा यहाँ पे मीटर ब्रिज रिलेटेड डिस्कशन फिनिश होता है. ओके एंड स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो मीटर ब्रिज हमने आपको पढ़ाया, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जिसको हमने ऑल्टरनेट नाम दिया, आपने उसमें कौन सा टेक्निक यूज किया बच्चों? जीरो डिफ्लेक्शन वाला? Balancing condition. बैलेंसिंग कंडीशन मतलब, लेकिन सर आपने जीरो डिफ्लेक्शन यूज किया सर, राइट सर? Yes, sir. ओके. सो स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपके MCQ में आ सकता है, MCQ ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्टली. So this method is also called as students null deflection method. All right, because आपने रीडिंग तब लिया, पॉइंट डी आपने वो चूज किया जब भी आपने गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन यानी नल डिफ्लेक्शन दिखाया. That's why this meter bridge is also called as students. देखिए एक नाम तो हम ऑलरेडी जानते थे, मीटर ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज. अभी अभी हमने एक और नाम जाना. This is called as students null deflection method. So we are calculating unknown resistance X over here by using null deflection method. Okay students. Yes, sir. Okay, nice. Students, हाँ, अब ये हमने आपको पूरा सर्किट दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, कनेक्शन रीडिंग सब बताया. अब थोड़ा सा थ्योरी है स्टूडेंट्स. देखिए मैं अभी आपको वो बेटा लिखवा तो दूंगा बट द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिकल आपका अब तक हुआ नहीं है बेटा, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा. तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट, हाईली रेकमेंड करूंगा, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स वेज इन विच आपके आंसर में
एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ एरर इन द एक्सपेरिमेंट। सो मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो सोर्सेज ऑफ एरर है वो आप अपने या तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़े, एंड ट्रस्ट मी इट इज थ्योरी, आपको चिंता नहीं होगी, ओके। या तो आप उसको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़े, यू हैव सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तभी आप उसको देखें। थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स, आपके मतलब राइट नाउ ओनली यू वांट टू स्टडी, तो आप अपना जो जर्नल होता है स्टूडेंट, नहीं मैनुअल कहना चाहिए, सॉरी बच्चों, जर्नल में वो लोगों ने एरर्स दिए होंगे, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सो यू हैव टोटल 3 ऑप्शंस बच्चा लोग टू अंडरस्टैंड द एरर्स। आर यू फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, okay. So students, there are mainly 3 ways in which आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, मतलब 3 तरीके से आपके आंसर में एरर आ सकते हैं, एंड देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे चलेगा, अपने मैनुअल से पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के चलेगा। वन मोर ऑप्शन, प्रैक्टिकली आप जब इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन या तो खुद परफॉर्म करोगे या किसी टीचर को परफॉर्म करते हुए देखोगे, तभी अगर आपने कवर कर लिया तो भी चलेगा। सो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, हम लोग आज का ये सेशन वाइंड अप कर रहे हैं, ओके। Yes, sir. ओके, सो मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन था वो आप लोग स्टार्ट टू एंड एक बार रिकॉर्डिंग का यूज कर लीजिएगा, इट विल हेल्प sir. यू फॉर रिवीजन पर्पस, ओके। Yes, sir. बाय स्टूडेंट्स, यस सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय Thank you so much, sir. Bye. Good night. बाय स्टूडेंट्स।